Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 11, continuation of third chapter, current electricity. Today we are going to continue Kirchhoff's law, numerical solving this part. So this is the second part of numerical solving for Kirchhoff's law. In this case we are going to do a little higher order numerical. Before starting this topic, just I'll revise the basic rules for Kirchhoff's law in this case again. So as you can see, they have written potential gain and potential drop. These 2 points are very important. So what is the criteria for the potential gain? For potential gain, when loop, this is the direction of loop, it is the direction of loop that you need to understand. So we have taken over here direction of loop. So if the direction of loop is from low potential to high potential, then there will be potential gain. So you are getting 2 points. It will be for the EMF for IR. And there's a potential gain, there will be plus, and this place also potential IR will be also plus. But when we are taking the second point, potential drop, in case of potential drop, the direction of loop will be from high potential to low potential. So in this case, what will happen? When we are talking about the EMF will be negative and IR will be also negative. Now we'll see this case. How do we identify which place will be high potential, which place will be low potential? So if you consider in this case, so this positive terminal will be high potential, negative terminal will be assumed to be low potential. And in case of resistor, when you are with the IR, so what is happening? Point where current is entering to the resistor. So point where current will enter to the resistor, so this point you can see. At this point current is entering to the resistor, high potential, and point from where current will leave the resistor will be low potential. So accordingly you can get. So our main task is just to find out whether it's a gain in potential or it's a drop in potential, and accordingly we'll go ahead. So potential gain hoga means low to high, potential drop hoga means high to low. These rules you have already done. You can write down in your notebook so that whenever you are solving numerical, there should not be any difficulty. So this is the question. Question is applying Kirchhoff's law to loops A, C, B, P, A. So A, C, B, P, A. So this loop. And A, C, B, Q, A. So A, C, B, Q, and A. So this point is Q. Fine. To write the expressions for I1, I2 and I3. It's a CBSE board question. In this question just we need to write out the expressions. Expressions आपने लिख दिया तो करेक्ट है, बट हम करंट भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो अभी जो सबसे पहला लूप है वो हम देख लेते हैं, A C B P A. So I'm starting from O here. So in loop A C B P A. Okay. So first we'll identify that loop and accordingly we'll draw. As I said now, when we are taking the loop, so अभी जो पॉइंट है ये पर्टिकुलर लूप है, यहां से आपको लेना है A C B P A. तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने क्या किया यहाँ पे वो फॉर्मेट को इमेजिन कर लिया. इट्स लाइक दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, देन इट विल गो लाइक दिस एंड देन वी हैव इमेजिन लाइक दिस. ठीक है. ये आप लूप के लिए इमेजिन कर लोगे तो बेहतर होगा. ठीक है. So what is the criteria? This is the assumption of loop. This we have imagined the loop just to draw or just to make the equation. And one more thing you can see, this is the power supply value is given as 6 volt and 0.5 ohm. Means there is an internal resistance. अब internal resistance तो यहाँ पे कहीं draw नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्रांच में आप resistor दिखा दो, so that it will be little simpler to understand. यहाँ पे भी क्या internal resistance है, EMF is given as 10 volt, so you can draw internal resistance over here also. Fine, just to understand. And this is the current I1 and I2 will enter to this junction and leaving I3. So this I3 will approach to junction B and then it will divide into 2 parts. So that is what I1 plus I2. So as you can see from this first law, I3 is nothing but current I1 plus current I2. Kirchhoff's first law. So this you know. Now this loop I have read according to whatever they have mentioned. Correct? So we'll see what is our task. Whenever I say, so in this loop, where is the power supply, that you see first. So when I'm talking about this loop, so this complete loop, where is the power supply? Power supply is over here. So it's like that whenever I say to apply Kirchhoff's law, you stand at this particular place, power supply जब आप stand होते हो,
then you move from positive to negative. Positive to negative move करने के लिए you are going right or you are going down in this branch. So what are we going to do? We'll draw arrow into that branch in this direction. फिर यहाँ पे करंट क्या होगा? It will go on right hand side, it will go down, it will go on left hand side, it will go up, it will go right hand side, and this will go up. So basically we are going to follow the loop like this. हमारा loop का डायरेक्शन ऐसा होगा, and accordingly we will find out high and low potential. अब हाई एंड लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो हाई पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है लो पोटेंशियल होगा. करंट ऐसे जा रहा है ना इस केस में. इस केस में यहाँ पे क्या होगा? करंट जहां पे एंटर कर रहा है हाई पोटेंशियल होगा, जहां से करंट लीव कर रहा है वो लो पोटेंशियल हो गया. और इस ब्रांच में कौन सा? यहाँ पे. सो करंट है I3 यहाँ पे, तो I3 का करंट विल एंटर ओवर हियर दिस हाई पोटेंशियल एंड विल लीव फ्रॉम ओवर हियर इट्स अ लो पोटेंशियल. So once now you'll be habitual, then it will be very easy for you all. It's not that complicated. So अब स्टार्ट करते हैं. So when we are starting, we will start from the power supply. तो हम कैसे जाएंगे? Clockwise direction में we will follow. So power supply कितना है? 6 volt है. We are going high to low. High to low in this sense 6 will be minus. Correct? Then we are going to 0.5 ohm resistance. ये कहां से जा रहा है? Low to high जा रहा है. करंट कितना है? 1 ampere. और this I1 है. तो ये क्या हो जाएगा? Low to high जा रहा है. तो ये क्या होगा? Low to high means plus. और करंट का वैल्यू कितना है? I1 है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.5. तो 0.5 I1 मिल गया हमको. Then we are going ahead. We are coming to this branch. ये ब्रांच में कहां जा रहे हैं? लो टू हाई जा रहे हैं. तो लो टू हाई अगेन प्लस होगा पोटेंशियल गेन. एंड रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है. एंड हाउ मच करंट? I3. बट एज फॉर एंड टोटल वैल्यू इज व्हाट? 0. बट एज फॉर वी आर अंडरस्टैंडिंग ये प्लस 6 हो गया प्लस 0.5 I1 बिकॉज I3 विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं. I3 इज बेसिकली I1 प्लस I2. तो दिस इज 12 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 0. सो अब ये हो गया 0.5 I1 एंड 12 I1. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5 I1. करेक्ट. और ये -6 उस साइड चला जाएगा, प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 6. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. तो वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर I1 एंड I2 एंड I3 फॉर द फर्स्ट लूप. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन. अब हमें क्या करना? लूप लेना, सेकंड लूप लेना. कौन सा सेकंड लूप है? सेकंड लूप इज ACBQA. सो वी आर टेकिंग इन लूप. ठीक है. सो इन लूप कौन सा लूप लिया आपने? ACBQA. तो अब यहां पे ना वापस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली ले लो. सो अब क्या हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं क्या साइड में कहीं लिख लेता हूं. चलो ठीक है, ऐसे लूप बना लेते हैं. ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, फिर दैट इज गोइंग अप, फिर ये ऐसे इट्स गोइंग लाइक दिस. करेक्ट? जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना. अगर आप बड़ा बना सकते हो तो यू कैन मेक इट लिटिल बिगर, दैट्स अप टू यू. ये आपके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमने अगर लूप प्रॉपर्ली नहीं लिया है तो देन एवरीथिंग विल गो रॉन्ग. दिस इज अ लूप. अब क्या होता है व्हेन वी आर टेकिंग द डायरेक्शन? सो क्राइटेरिया अगेन सेम होता है कि उसमें तो ये आर वाला कंपोनेंट कवर्ड है. अब यहाँ पे क्या होता है? हाई लो पोटेंशियल पहले आप असाइन कर दो. यहाँ पे क्या होगा? ये हाई पोटेंशियल होगा, नेगेटिव लो पोटेंशियल होगा. करंट इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, करंट इस जंक्शन से लीव कर रहा है. जंक्शन तो मतलब इस पॉइंट से ऑफ द रेजिस्टर, नॉट द जंक्शन. वन टर्मिनल मींस एट दिस टर्मिनल टू द रेजिस्टर एंट्रिंग, एट दिस टर्मिनल ऑफ रेजिस्टर इट इज लीविंग. अब क्या होता है कि हम ना स्टैंड होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, देन विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव. तो जब आप नेगेटिव की तरफ जाओगे तो इट इज गोइंग अप लाइक दिस. तो एरो आपको ऐसे बनाना है. तो उस पैटर्न को क्या कर लेना? आपको फॉलो कर लेना. गॉट इट? तो अब इस केस में भी हम कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं. सो अब इसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं. तो क्राइटेरिया क्या होगा? फिर से निकल के पावर सप्लाई कितना है? पावर सप्लाई का वैल्यू 10 वोल्ट है. वो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा. तो ये 10 वोल्ट है, बट वी आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो जा रहे हैं. तो हाई टू लो जा रहे हैं तो क्या होगा? -10 हो जाएगा. देन वी आर गोइंग टू दिस रेजिस्टेंस. ये देखो लो टू हाई हो गया. लो टू हाई मतलब पोटेंशियल गेन है तो प्लस होगा. और रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम है. करंट कितना है? I2 है. ठीक है. प्लस प्लस है माइनस है दैट वी डोंट नो. अब यहाँ पे ऑप्शन में है ये वाला रेजिस्टर. यहाँ पे क्या है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. लो टू हाई जा रहे हो तो क्या होगा? गेन है, दैट इज प्लस. रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 12 ओम. एंड व्हाट इज द करंट का वैल्यू? I3 इक्वल टू 0. अब प्रॉब्लम कैसा है कि देयरफॉर ये इसको ब्रेक करना है तो कर दो. ये ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? ये I2 हो गया. ठीक है. प्लस ये 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 I1 प्लस 12 I2. ठीक है. अगर ये 10 को साइड लेना है तो आप ले लो. अब क्या होता है? यहाँ पे I1 की वैल्यू तो 12 I1 हो गया, बट व्हाट्स अबाउट द I2? इट्स 13 I2 इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जो इन्होंने मेंशन किया था कि आपको ये दो लूप लेके आपको
एक्सप्रेशन ये रिलेट करना, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसा होता है कि वी आर ट्राइंग टू गेट करंट, अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखो यहाँ पे 12.5 I1 है, ये 12 I2 है, यहाँ पे क्या है 12 I1 है और ये क्या है 13 I2 है। तो अगर आप ना साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते हो तो इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि बड़े नंबर्स है ना, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम एक और लूप ले लेते हैं। तो दूसरा कौन सा लूप लोगे? और एक लूप आप यहां पे देख लो, ये जो नेक्स्ट लूप लोगे ना इसके अंदर ले लो आप ये वाला, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम कैसा, हाउ मेनी पावर सप्लाई आ गई, एक 6 वोल्ट है, दूसरा कौन सा 10 वोल्ट है। तो हम ना 10 वोल्ट के रिस्पेक्ट में लेते हैं चीजों को, और हाई लो पोटेंशियल तो हमने सबका आइडेंटिफाई कर ही दिया। तो 10 वोल्ट के ना पॉजिटिव यहां पे आप स्टैंड होते हो, देन यू आर गोइंग टू नेगेटिव साइड। तो ये ऐसे जाएगा अप में, ये इस तरह से पैटर्न फॉलो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। ये कौन सा लूप हो गया? लूप ए पी बी क्यू ए। सो इन लूप ए पी बी क्यू ए। अब इक्वेशन बना के देख लेते हैं। जो पहला वैल्यू है ना, हम यहां से स्टार्ट करें ना, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वैल्यू है कितना, ये यहां पे पार्ट्स अवेलेबल है 10 है। तो हाई टू लो जा रहा है ना, हाई टू लो मतलब ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग मतलब क्या हो गया माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये हो गया माइनस -10। देन यू आर गोइंग इन दिस वे। तो ये क्या होगा लो टू हाई, यू आर गोइंग लो टू हाई। तो लो टू हाई क्या होगा प्लस हो गया, ये कितना 1 हो गया और करंट कितना फ्लो हो रहा है I2। तो 1 into I2 क्या होगा I2 हो जाएगा। देन यू आर कमिंग टू दिस ब्रांच, ये यहां पे हम कैसे जा रहा है हाई टू लो जा रहा है, हाई टू लो इन द सेंस माइनस, कितना रेजिस्टेंस है 0.5 है, कितना करंट है उस ब्रांच में से I1 करंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कहां से जा रहा है लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई मतलब क्या होगा प्लस हो गया, वैल्यू कितना है 6 है और उसका कुछ और रेजिस्टेंस नहीं है, ये 0 हो गया। तो ये -10 और +6 क्या हो जाएगा -4। अब इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। तो ये का -0.I1 हो गया, ठीक है, प्लस क्या होगा ये I2 हो गया, इज इक्वल टू -4 उधर चला जाएगा, है ना। चलो ठीक है, लिखना है तो इसको -4 लिख लो इक्वल टू 0, एक स्टेप बढ़ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं, बट आंसर शुड नॉट बी रॉन्ग, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। तो अब ना चीजें थोड़ी सिंपल हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, वी कैन रिलेट विद एनी वन इक्वेशन। तो हमको लग रहा है कि चलो ठीक है, ये इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करें इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1। तो अभी देखो ना यहाँ पे मैं चाहता हूं पहले I1 की वैल्यू गेन करना चाहता हूं, आई वांट टू गेट वैल्यू फॉर I1। तो I1 की वैल्यू गेट करने के लिए हमको I2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या है 12 है, वहां पे I2 का वैल्यू क्या है I2 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी नीड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 12, ठीक है। तो पहले ना वो इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन क्या है, क्योंकि साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर रहे हो आप। तो ये इक्वेशन क्या था आपका, दिस इक्वेशन इज 12.5 I1 फिर क्या है प्लस 12 I2 है इज इक्वल टू 6। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 12 5 द 16, ये हो जाएगा -6 I1 हो गया। देन ये वैल्यू का होगा प्लस 12 I2 हो गया और ये क्या होगा 48 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब इस कंडीशन में क्या लेना है आपको, देन वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट। तो कैसे सबट्रैक्ट करोगे, ये वैल्यूज होगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, दीस टू वैल्यूज विल ऐड, ये क्या हो जाएगा 18.5 I1 हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी वैल्यू है ये तो पूरा कैंसिल हो गया, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस 48 - 6 दैट इज व्हाट -42। अब मैं I1 की वैल्यू ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं, जस्ट I1। सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट फॉर I1, सो देयरफॉर I1 विल बी, सो अब आपको मिलेगा I1 इज इक्वल टू, मिला आपको -42 अपॉन 18.5। अच्छा, टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 82 जा 36 एंड ये 37 हो जाएगा, और ये -84 एम्पियर। अच्छा, माइनस का मतलब क्या हो गया, विल सी द करंट I1, करंट I1 इस ब्रांच में जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है ना, जो 10 वोल्ट है उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि ये E1 के स्ट्रेंथ को क्या करता है ना रिवर्स कर देता है, मतलब उसके इफेक्ट को इतना दिखने नहीं देता है। सो E1 का पोटेंशियल उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना 10 वोल्ट वाला होगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट की वजह से करंट उसका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। अब क्या करना है, हमको निकालना है वैल्यू फॉर I2। I2 के लिए हम कौन सा इक्वेशन लेते हैं, 3 वाला ले लेते हैं। सो पुट I2 इज इक्वल टू -84 अपॉन 37, कहां पुट करें इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या मिलेगा -0.5 इंटू I1 की वैल्यू क्या है -84 है अपॉन 37,
ठीक है, प्लस क्या है I2 इज इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और फिर ये 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 37, प्लस क्या होगा ये I2 इज इक्वल टू 4, तो I2 की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 42 अपॉन 37, एलसीएम में क्या ले लिया हमने 37 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 एंड 2 14 माइनस 42। अब देखते हैं I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 106 अपॉन 37 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यू आ गई। नाउ विल सी फॉर द I3। I3 का क्या वैल्यू है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से I1 प्लस I2, तो ये होगा I1 प्लस I2, वैल्यूज क्या है, I1 का वैल्यू हमने निकाला है -84 अपॉन 37 प्लस 106 अपॉन 37, ठीक है, एलसीएम हो गया 37, एक्चुअल में 106 माइनस दिस, तो 106 से ये 2 हो गया और 10 से 2 ये 2 हो गया, तो 22 अपॉन 37 एम्पियर करंट होगा ये। तो क्या होता है कभी कभी ना सर्किट देख के आपको बहुत टेंशन आ सकता है कि ना सर्किट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑल, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व, बट इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल, बेसिक रूल्स पता है, जस्ट यू मेक इक्वेशंस एंड यू कैन गो अहेड। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ये 2 इक्वेशन के लिए निकाला था, हमने वो निकाला है, बट वी फाउंड कि ना वो 2 इक्वेशन से कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाएगा, सो आई टुक वन मोर इक्वेशन। हो सकता है शायद थर्ड इक्वेशन से भी उतना ही कॉम्प्लिकेशन होता, तो हम बिगिनिंग 2 से ही सॉल्व करते, या नए वाले से भी सॉल्व कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। एज यू कैन सी आई हैव गिवन 2 क्वेश्चंस, तो फर्स्ट विल सॉल्व this question, and because there are certain concepts which are linked, that's why I have written collectively. So question is determine unknown resistance capital R. तो सर्किट में यहाँ कैपिटल R है, we have to determine that one when no current flows through 4 ohm resistor, also find potential difference between A and D. No current flows through 4 ohm resistor, तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, so value of I for this branch will be what, 0, and then they are saying also find the potential difference between A and D, so this is the point A and this is the point D, so this potential difference we need to find out, okay। so ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा कई बार, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, सॉल्व करने में इतना कॉम्प्लिकेशन है, बट यू हैव टू थिंक वेरी प्रॉपर्ली, क्योंकि क्या होता है यू आर फाइंडिंग सर्टेन फैक्टर्स आर नॉट नोन, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ना ये कुछ ना गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे मे बी आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो व्हेन वी आर टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है आपको, तो ये मान लो 9 वोल्ट की बैटरी, सबसे बड़ी बैटरी जो है वो देख लो आप, तो यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी, इसने करंट रिलीज किया, ये कैपिटल आई होगा, बराबर। अब दूसरा क्या होता है, यहां से सेम करंट इस रेजिस्टर से पास होगा, वो करंट यहां से पास होगा, बराबर। अब यहाँ पे ना टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्यों मैं I ले रहा हूं, मैं I1 क्यों नहीं ले रहा हूं, दैट यू नीड टू थिंक। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, इस रजिस्टर में से कोई करंट नहीं जा रहा है, ये करंट कैपिटल I यहां से पास हो जाएगा, यहां से भी वो करंट कैपिटल I ही पास होगा, फिर यहां से भी करंट क्या होगा, कैपिटल I पास होगा, तो ये पूरा जो है जब सर्किट है इसमें करंट I ऐसे फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट है, हम ना जितने भी जगह दिख रहे हैं वहां हम हाई एंड लो पोटेंशियल असाइन कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है हमको जरूरत पड़े। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हाई हो गया, नेगेटिव टर्मिनल लो हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टर के इस एंड से करंट एंटर हो रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, इस एंड से करंट लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी इस रेजिस्टर के इस एंड से करंट एंटर कर रहा है, इस एंड से करंट लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल। सिमिलरली यू गो है, यहाँ से क्या करंट एंटर कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, इस एंड से करंट लीव कर रहा है लो पोटेंशियल, ये क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल ये लो पोटेंशियल होगा। अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये तो जीरो हो गया, बट ना पोटेंशियल को तो पावर सप्लाई का तो देना पड़ेगा ना, पॉजिटिव हाई होगा एंड नेगेटिव क्या होगा लो होगा। अब क्वेश्चन में क्या करना है कि हाउ आर वी गोइंग टू सिलेक्ट द लूप, तो अब एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि ए बी ई एफ वाला एक लूप ले सकते हैं, फिर बी सी डी ई बी वाला आप लूप ले सकते हैं, पर कौन सा लूप लेना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे अगर ना मैं बड़ा लूप ले लेता हूं, ऐसा अगर ये लूप लिया तो यार ये वाला लूप लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये करंट तो नहीं पता, कोई इशू नहीं, ये नहीं पता, बट ये आई के अलावा हमको आर की वैल्यू भी नहीं पता, तो वी कांट सिलेक्ट द सेकंड लूप। हम ना फर्स्ट लूप से ट्राई करते हैं, तो फर्स्ट लूप पे क्या होता है, फर्स्ट लूप अभी आपको लग रहा होगा ना करंट की वैल्यू जीरो, तो कैसा आंसर मिलेगा, तो लेट्स सी हमको आंसर मिलता है नहीं मिलता। तो हमने लूप ले लिया है, सो इन लूप विच लूप वी आर टेकिंग ए बी ई एफ एंड ए, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पावर सप्लाई। अच्छा उससे पहले क्या करना, हमको एक लूप बनाना पड़ेगा अंदर, तो वी हैव मेड ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का तो हमने बना लिया।
सो यू स्टैंड वेरी क्लोज टू बिगर पावर सप्लाई, सो जो पॉजिटिव टर्मिनल वहां खड़ा होकर आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हो ऐसे। ये ऐसा कोई रूल नहीं है, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ले लेते हैं ताकि ना मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मिल जाता है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कंसिडर करके आप डायरेक्टली अपने मन से क्लॉकवाइज ले लो, अपने मन से एंटी क्लॉकवाइज ले लो, देन यू मेक ए क्वेश्चन, दैट्स आल्सो फाइन, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब क्या होता है कि हमने यहां से स्टार्ट करते हैं, बिगर पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, राइट में जा रहे हो आप तो हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब -9 वोल्ट। अब आगे जाने के बाद आप यहां पे आ गए 6 वोल्ट पे, या कहां से जा रहे हो, लो टू हाई आ रहे हो, लो टू हाई मतलब पोटेंशियल गेन हो गया, कितना वैल्यू है 6 वोल्ट है। फिर आप उसके बाद यहां पे आ जाते हो आप, ये पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है, करंट का वैल्यू 0 है ना, तो उसको प्लस ही ले लो, तो मतलब 0 इंटू क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 हो गई, तो ये एक वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टर के लिए क्या होगा, ये लो टू हाई जा रहा है, तो लो टू हाई तो क्या प्लस हो गया, तो कितना वैल्यू 1 ओम रेजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो होगा, तो वो आई हो गया। फिर आगे आप बढ़ते हो, यहाँ पे क्या होगा, लो टू हाई जा रहे हो, तो लो टू हाई अगेन प्लस होगा, बट ये क्या होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस कितना करंट, आई करंट। फिर फाइनली वापस से पावर सप्लाई के पास आ गया, तो ये हो गया 0। अब अगर बहुत ध्यान से देखना हो तो इस वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू तो 0 हो गया, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, ये 2i होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। Therefore 2i is equal to 3, therefore i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2, that is what 1.5 एम्पियर, मतलब इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। सो अब क्या हो गया ना, हमको i की वैल्यू पता चल गई, तो बाकी जगह पे i की वैल्यू लिखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, यहाँ पे जैसे मैं i की वैल्यू सॉरी, ये यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 1.5 एम्पियर लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो क्वेश्चन में पहला क्या था, डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल R, कैपिटल R की वैल्यू नहीं पता चली हमें, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो हमने करंट निकाल लिया, शायद अब हमको हेल्प मिल जाएगा। तो हमने क्या लिया, लूप ले लिया, कौन सा लूप ले लेंगे, EDCBE। सो इन लूप कौन सा लूप ले लिया हमने, EDCBE, आपको दिख रहा होगा ये लूप, बराबर। अब क्या करना, हमने यहाँ पे जो भी लूप का जो पैटर्न होता है, हमने एक लूप बना लिया। अब दो पावर सप्लाई है, 3 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि यू स्टैंड वेरी क्लोज टू बिगर पावर सप्लाई। आपको क्या करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाके देखो, तो कितना डाउन जा रहा है, तो डाउन के हिसाब से आपने एरोज बना लिए, बराबर। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ये पावर सप्लाई से, तो आप कहां से जा रहे हो, हाई टू लो जा रहे हो, हाई टू लो मतलब माइनस हो गया, -6। फिर आप यहां से ए पार्ट से जा रहे हो, तो क्या होगा, ये पावर सप्लाई के लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई मतलब प्लस हो गया, +3 वोल्ट है ना। अब यहाँ पे कहां से जा रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई प्लस हो गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, बट करंट की वैल्यू का 1.5 है ना, अगर हमने डिटरमाइन किया ना, तो 1.5 R हो गया। अब अगला पॉइंट क्या होगा, एज यू गो अहेड, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, ये 4 × 0 हो गया ना, तो वो प्लस ले लिया, 4 × 0, तो वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो गया। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कितना वैल्यू होगा, ये हो गया -3 हो गया, और क्या +1.5 R हो गया, इक्वल टू 0। 1.5 R को ये रहने दो, 3 को उधर लेके चले जाओ, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/1.5, दैट इज व्हाट, 2 ओम। तो अब क्या होगा, अब हमने ना वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो चाहिए था, मतलब R की वैल्यू हमने क्या कर ली, डिटरमाइन कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो A एंड D, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है, तो एक चीज ना आपको याद रखना है कि जब ऐसा कभी भी हम ना कनेक्शन लेते हैं, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लाइक ये पॉइंट A है, फिर यहाँ पे ना आपने पावर सप्लाई कनेक्ट किया, यहाँ पे IR कनेक्ट किया, फिर पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, फिर IR कनेक्ट कर दिया, फिर क्या है पावर सप्लाई करना, फिर IR, मतलब कुछ भी होगा, ये पॉइंट B है। तो कंडीशन का बहुत सिंपल सा होगा, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो वो पॉइंट का पोटेंशियल आपने लिखा, पोटेंशियल है A, ये मान लो ये पावर सप्लाई E1 हो गया, तो आपने पोटेंशियल E1 लिखा, ये प्लस माइनस कुछ भी होगा। फिर ये जो IR की वैल्यू आई, ये प्लस माइनस कुछ भी होगा, फिर क्या करोगे आप, EMF लोगे, ठीक है, फिर प्लस माइनस R। जब ना टोटल होने के बाद जब आप B पे पहुंचोगे ना, तो वो पूरी वैल्यू को इक्वेट करना है टू B। गॉट इट, ऐसा है, जहां से स्टार्ट करोगे वो होगा, ये सारी चीजें ऐड होती जाएंगी, जो फाइनल पॉइंट होगा इक्वल टू दैट फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल विल बी देयर। दैट इज द रूल व्हिच वी नीड टू फॉलो। अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप ऐसे इक्वेशंस बनाते हो, ठीक है, हो सकता है आप लो टू हाई या हाई टू लो जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, VAD हमको निकालना है, जिसमें VAD का वैल्यू क्या होगा, VA माइनस VD होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू D। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट A से, और वही ना पोटेंशियल गेन एंड ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट लेना। तो ये क्या होगा, पॉइंट A, तो मैंने ले लिया पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब वहां से आप स्टार्ट करते हो, यू आर कमिंग टू दिस पावर सप्लाई, पावर सप्लाई से हाई टू लो जा रहे हो आप,
हाई टू लो जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब माइनस हो गया, वैल्यू कितना है 9 है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ गए बी पे, कुछ नहीं है। फिर आप ये पावर सप्लाई से पास हो, तो ये क्या होगा, लो टू हाई जा रहे हो तो कितना वैल्यू 3 वोल्ट है, मतलब प्लस आएगा, लो टू हाई जा रहे हो इसके लिए प्लस होगा, और ये 3 वोल्ट है। अब और आगे बढ़ गया पॉइंट सी से आप रजिस्टर से पास हो रहे हो, कहां, लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई का मतलब क्या हो गया, प्लस होगा। और कितना करंट है 1.5 है, और रजिस्टर की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाला ना, आर की वैल्यू 2 ओम मिली है। फिर फाइनली अब ये रजिस्टर से पास हो गया, कौन सा पॉइंट पे आ गया, डी पे आ गए, तो अब मतलब ये पूरी वैल्यूज को क्या कर दो, डी के इक्वल कर दो, बराबर। अब सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ये वी ए हो गया, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई क्या होगा, -6 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 3 हो गया, इज इक्वल टू आ गया वी डी हो गया, तो अभी क्या होगा वी ए -3 इज इक्वल टू वी डी। अब क्या होगा, ये वी ए माइनस वी डी आप यहां पे ले लो और 3 को आप उस साइड शिफ्ट कर दो, तो मतलब ए एंड डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। तो फॉर अस ना अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप कितना फास्ट और स्लो करते हो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट राइट नाउ। एक बार आप समझ जाओगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वी विल सी व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड कैपिटल आर एंड R1। आपको कैपिटल आर और R1 निकालना है, ठीक है। यदि पोटेंशियल एट ए इज 0, जब यहां पे पोटेंशियल 0 होगा मतलब वी ए का वैल्यू क्या है, 0 है। फिर क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल एट बी, मतलब बी पे पोटेंशियल निकालना, वी बी का वैल्यू निकालना, देन यू हैव टू फाइंड आउट आर का वैल्यू एंड R1 का वैल्यू निकालना हमको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पावर सप्लाई का वैल्यू ये 4 वोल्ट है और ये पावर सप्लाई का वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट है। गॉट इट। अब इसमें ना करंट काफी हद तक ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो विल सी द करंट का कंडीशन। यहां से करंट 3 एम्पियर रिलीज हो रहा है ये पावर सप्लाई से, तो जितना करंट रिलीज होगा उतना ही अप्रोच भी करेगा। अभी यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, तो ये पार्ट में कुछ दिखाया नहीं है, हमको लॉजिकली समझना पड़ेगा लेट्स सी कि वो कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। सो अब ये क्या होता है यहाँ पे, अच्छा ये एक्चुअली ये 3 एम्पियर रहेगा, बाय मिस्टेक है कितना। सो ये 3 एम्पियर है, यहाँ से ये 3 एम्पियर, ये करंट 1 एम्पियर होगा, तो इस ब्रांच से कितना होना चाहिए, लॉजिकली देखो तो 2 एम्पियर करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ये 1 एम्पियर यहां से पास होकर आएगा, करेक्ट, ये करंट भी होगा 1 एम्पियर। जब ये 1 एम्पियर यहां पे पहुंचेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 एम्पियर करंट, तो बोथ विल ऐड टुगेदर एंड विल गिव यू 3 एम्पियर, ठीक है। सो अब करंट की वैल्यू सारी पता चल गई, ये रेजिस्टेंस से हमें क्या होगा, 3 एम्पियर करंट विल फ्लो। अब क्या करना है, हाई एंड लो पोटेंशियल को असाइन कर लेते हैं। हाई एंड लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल पहले पावर सप्लाई का दे देते हैं, ठीक है। आप रेजिस्टर का देख लेते हैं। ये हिसाब से देखो तो करंट यहां से जा रहा है, तो इस एंड पे करंट एंटर करेगा रेजिस्टर के, तो ये हाई हो गया। इस एंड से लीव कर रहा है तो ये लो हो गया, ठीक है। अब इस पर देख लेते हैं, ये 2 में यहां से एंटर करा तो ये हाई हो गया, ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब ऐसे ये इसके लिए भी होगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल हाई हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल लो हो जाएगा। नाउ आई गॉट ऑल हाई एंड लो पोटेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पार्ट। ये चीज अगर आपको डायरेक्टली पता होती है ना, तो देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट हाई एंड लो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब हमने कोई भी एक लूप ले लेते हैं, मान लो चलो ठीक है, हमको आर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हमने आर का लूप ले लिया, ठीक है। आर का लूप लेना तो कितना पावर सप्लाई है, इस ब्रांच में की पावर सप्लाई है, तो एज आई सेड ना, यू स्टैंड वेरी क्लोज टू पावर सप्लाई। पॉजिटिव टर्मिनल के पास खड़े होकर नेगेटिव की तरफ जाके देखो किधर है, तो ये लेफ्ट में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आई मेक द लूप, ठीक है। अब क्या हो गया, इस लूप के हिसाब से व्हाट इज द नेम ऑफ लूप। अच्छा, यहाँ पे ना ये कॉर्नर्स में वैल्यू दिया नहीं है, तो मैं इसको ना यहाँ पे ई ले लेता हूँ, यहाँ पे एफ ले लेता हूँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये लूप का नाम क्या होगा, ए सी डी एफ ए, है ना। तो आप लिख लो इन लूप, पहला लूप कौन सा होगा, ए सी डी एफ ए, बराबर। पावर सप्लाई का वैल्यू का यू आर गोइंग लाइक दिस, तो ये क्या 2 वोल्ट का होगा, -2 हो गया। इट विल पास थ्रू दिस वन, ये रेजिस्टर क्या होगा, लो टू हाई ना, लो टू हाई मतलब का प्लस हो गया, व्हाट इज द करंट टू दैट, 1 हो गया, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। फिर आगे इस ब्रांच में कुछ भी नहीं है, यू आर कमिंग टू दिस ब्रांच, ये कितना है, रेजिस्टर की वैल्यू 2 है और करंट की वैल्यू भी 2 है, बट व्हाट्स अप यू होगा हाई टू लो, हाई टू लो मतलब माइनस हो गया, तो -2 into 2 वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया, तो ये -2 प्लस आर -4 इज इक्वल टू 0, तो ये r -6 इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू क्या हो गया, 6 ओम हो गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, r का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अब हमें दूसरा लूप लेना है, सेकंड लूप कौन सा हो गया, सेकंड लूप के लिए ना ये डी सी ई बी, तो अब आपको आगे मिलने के चांस है। तो अभी क्या होगा, इन लूप कौन सा लूप ले लिया हमने, डी सी ई बी डी, ठीक है। अब इसमें कितने पावर सप्लाई है, एक ही पावर सप्लाई है, तो उसके हिसाब से आपको लूप लेना। अब उस लूप के लिए क्या करना, यू स्टैंड वेरी क्लोज टू पावर सप्लाई,
एंड देन यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो राइट में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया लूप का। अब देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो पावर सप्लाई कहां से कहां जाओगे आप, इस डायरेक्शन को फॉलो करो ना, लूप के डायरेक्शन को। तो हाई टू लो जा रहे हो, मतलब ये इस साइड में हाई टू लो मतलब माइनस होगा, वैल्यू क्या है 4 है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हो, ये रेजिस्टेंस से पास होगा लो टू हाई, करंट की वैल्यू क्या उस ब्रांच में 3 एम्पियर है, तो लो टू हाई मतलब प्लस हो गया है, तो 3R1 हो गया बराबर। फिर ये हो गया है ये पर्टिकुलर पार्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहां से कहा जा रहा है लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई मतलब क्या हो गया, लो टू हाई मतलब ना प्लस होगा, और कितना करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, करंट की वैल्यू भी क्या है 2 है, और फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट पावर सप्लाई में पहुंच गया, तो ये 0 हो गया। तो क्या होगा -4 + 3R1 + 4 = 0, ये कैंसिलेशन हो गया, तो 3R1 की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गई, तो R1 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन में बोला ना अगर पोटेंशियल ए का 0 है तो बी का पोटेंशियल पूछा, तो हम ना ऐसे जाके देखते हैं जैसा हमने नॉर्मली मेथड में फॉलो किया था। तो हम क्या मेंशन करते हैं कि चलो ठीक है, पोटेंशियल जो ए पे है वो वी हो गया, ये इस पावर सप्लाई से पास हो रहा है, लो टू हाई, तो क्या पोटेंशियल गेन हो गया, कितना वोल्ट है 2 वोल्ट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे रेजिस्टर, अब कहां जा रहा हो हाई टू लो जा रहे हो, तो क्या होगा माइनस साइन होगा, ये करंट कितना है 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0 है, इक्वल टू, क्योंकि आप डायरेक्टली बी पॉइंट पहुंच रहे हो, तो पोटेंशियल है बी, अभी क्या हो जाएगा VA + 2 = VB। क्वेश्चन में क्या है कि VA का वैल्यू क्या है 0 है, +2 = VB, तो फाइनली VB का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, तो B का पोटेंशियल भी हमको मिल गया। सो क्वेश्चन इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, आपको थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है, इफ यू विल अप्लाई लॉजिक यू विल गेट द आंसर। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन देख के, डायग्राम देख के यू विल बी लिटिल कंफ्यूज्ड एंड ऑल कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, एंड डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन एंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, जो जितने भी ब्रांच है, AB ब्रांच, देन this BD ब्रांच, BED ब्रांच, then AD branch and AC branch, then BC branch and CD branch. In each branch they want to find out current. So what are we supposed to do? ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें ना हम एक अलग लेवल पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, बट एक बार समझ लेते हैं कि हाउ हैव दे टेकन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहले सर्किट में कितने पावर सप्लाई वो देख लेते हैं। सो देयर इज अ वन पावर सप्लाई 10 वोल्ट ओवर हियर एंड सेकंड पावर सप्लाई 5 वोल्ट ओवर हियर। सो अब क्या होता है, जैसे जनरली हम लेते हैं ना I1 से I1 ले लिया, सेकंड पावर सप्लाई से I2 ले लिया, बट इन्होंने I3 ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको चेंज भी कर सकते थे, वो मैं बताता हूं कैसे। तो जैसे अभी पावर सप्लाई 10 वोल्ट से क्या I1 करंट रिलीज होगा, तो अगर I1 करंट रिलीज हुआ इस साइड में तो सेम करंट इज गोइंग टू अप्रोच ओवर हियर, ठीक है, इस पावर सप्लाई से I1 करंट फ्लो हो गया। अब आप इमेजिन करो कि ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो इट इज गोइंग टू स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि अगर आपने यहाँ पे I1 लिया होता और यहाँ पे I2 लिया होता, तो हमने एक और करंट को इंट्रोड्यूस कर दिया I3, फॉर एग्जांपल I3 हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अगर ये I3 यहाँ पे होता तो क्या होता I1 माइनस I3, क्योंकि यहाँ पे I3 लेके फिर I4 लेते तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता। तो मैक्स टू मैक्स यू कैन टेक 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स होगा तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये क्या होगा, यहां से आपने करंट रिलीज गई है I1 है, इस ब्रांच से I2 चला गया, और इस ब्रांच से क्या होगा I1 में से I2 यू आर सब्ट्रैक्टेड, इस ब्रांच से I2 करंट जा रहा है, गॉट इट। अब क्या होता है कि दिस विल गो अप टू दिस एक्सटेंट, यहाँ पे ये करंट I2 हो गया और ये पावर सप्लाई से I3 रिलीज हुआ है, व्हिच विल कंबाइन हो गया ना, इट विल बी I2 प्लस I3। बट अगर मान लो मैंने जैसे कि ना इसको अगर मैंने I3 लिया होता है ना, इसको I3 लिया होता, इसको I2 लिया होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, I2 और I3 ऐड हो गया, यहाँ पे ये सेम वैल्यू देते हैं। फिर क्या होता है, यहां से क्या होता है कि जब ये करंट आगे मूव करता तो फ्रॉम I2 प्लस I3 I1 करंट विल गो टू दिस ब्रांच, तो मतलब I2 प्लस I3 में से I1 माइनस हो गया है, तो माइनस I1, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये I1 माइनस I3 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और I1 माइनस I2 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा I1 विल रिमेन देयर, दिस I1 है ना, ये इनके साथ में ऐड होगा, तो ये I1 इस I1 से कैंसिल हो जाएगा। मान लो अगर I2 होता तो I2 से कैंसिल होता, I3 होता तो I3 से कैंसिल होता, मान लो I3 कैंसिल होता तो I2 हम यहाँ पे लिए होते, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे I3 इमेजिन किया, ये मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट होता है I3 होता, तो ये वैल्यू क्या होता I1 माइनस I3 होता, तो अगर यहाँ पे I3 होता तो यहाँ पे करंट क्या होता I2 होता, ठीक है। तो देख लेते हैं अब ये क्या होता है, जब I1 माइनस I2 ऐड होता है किसके साथ में I2 प्लस I3 माइनस I1,
मतलब पहले जो कंडीशन डायग्राम में दिया हुआ तो क्या होगा इसमें I1 विल कैंसिल विद I1, I2 विल कैंसिल विद I2, व्हाट इज लेफ्ट I3 जो हमने पहले कंडीशन लिया हुआ है। मान लो कि ना हम अपने हिसाब से चलते फर्स्ट पावर सप्लाई से I1 ले लिया, सेकंड पावर सप्लाई से I2 ले लिया, फिर अगर ये I3 होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेड मार्कर वाला भी हम लिखेंगे। रेड मार्कर वाला डिटेल क्या है, I1 माइनस I3 है, वो किससे साथ में ऐड होता, I2 प्लस I3 के साथ में ऐड होता माइनस I1 होगा विल कैंसिल विद दिस वन एंड दिस वन, तो व्हाट इज लेफ्ट I2। तो जो है अगर हम ये कंडीशन लेते तो हमें I2 मिलता, बट अभी इन्होंने ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है तो विल गो अकॉर्डिंगली, और फिर हम डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ना करंट का कन्वेंशन कैसे लिया है, किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है कि वी हैव टू टेक लूप्स, तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है यहाँ पे ना मैं इस लूप को लेना, ये दो लूप को लेकर सॉल्व करना चाहता हूं मैं। तो आप समझो कि मैंने ये लोअर लूप को ले लेता हूं, ये यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप है तो मैंने ट्रायंगुलर शेप का लूप बना दिया ऐसा, गॉट इट। पावर सप्लाई कितना है इसके अंदर, ओनली वन पावर सप्लाई। एज आई सेड यू हैव टू स्टैंड वेरी क्लोज टू पावर सप्लाई, पॉजिटिव टर्मिनल के पास करोगे यू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये इस साइड में जा रहा है राइट साइड में, तो आप राइट के हिसाब से लूप बना लो, बना लिया आपने। तो अब हम मेंशन कर देंगे, क्या लिखेंगे, इन लूप, कौन सा लूप हमने लिया, इन लूप ACDA। तो जैसा हमारा पहला है पावर सप्लाई से देखो, अच्छा उसके बाद हमने हाई लो पोटेंशियल भी असाइन करना था, वो मैं भूल गया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हाई हो गया, नेगेटिव टर्मिनल लो हो गया, और इस पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है रेजिस्टेंस के तो ये हाई हो जाएगा, इस पॉइंट से करंट लीव कर रहा है तो ये लो हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट एंटर कर रहा है तो ये हाई होगा, यहाँ पे इस पॉइंट से लीव कर रहा है तो ये लो हो गया। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, बराबर। बाकी के लिए रिप्रेजेंट कर दे इसी टाइप में तो ठीक है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है हाई होगा, यहाँ से करंट लीव कर रहा है लो हो गया, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है ये हाई हो जाएगा, यहाँ से करंट लीव कर रहा है ये लो हो जाएगा, और ये पावर सप्लाई है तो ये लो हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे मिल गए। अब हम लूप के हिसाब से देख लेते हैं, तो विच लूप वी आर सॉल्विंग फॉर द लूप ACDA। सो पावर सप्लाई का वैल्यू 10 वोल्ट, बट वी आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, तो फर्स्ट वैल्यू इज -10। फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस जब आप पास हो रहे हैं तो लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई मतलब पोटेंशियल गेन हो गया, प्लस ले लेना, तो 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट I1 जा रहा है, तो ये हो गया I1। नेक्स्ट कौन सा हो गया, ये ब्रांच का हाई टू लो मतलब माइनस हो गया, और कितना करंट फ्लो रहा है इस ब्रांच से, ये करंट की वैल्यू है। बट व्हाट इज द वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, सॉरी वो मैं यहाँ लिखा हूं, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 2 ओम इसके साथ में सिंपल है, तो 2 ओम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। अब इस ब्रांच में आ जाते हैं, इस ब्रांच में क्या है, आप जा रहा लो टू हाई, ये प्लस हो गया, ठीक है, और 4 ओम में करंट कितना हो गया, 4 ओम, करंट की वैल्यू क्या होगी I1 माइनस I2, एंड टोटल वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। तो फर्स्ट लूप की वैल्यू मिल गई हमको। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -10 को भी मैंने -10 ही रह दिया, प्लस क्या हो गया I1 माइनस 2I2 माइनस 2I3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। तो पहले I1 वाले टर्म को देख लेते हैं, यहाँ पे I1 है, ये I1 है और ये I1 है, 4 2 6 1 7, तो ये होगा 7I1, ठीक है। अब I2 वाले टर्म को देख लेते हैं, 2 फिर I2 कहां पे, ये है, सो 2 and 4 क्या होगा 6 हो गया, तो क्या होगा 6I2 हो गया। अब 3 वाले टर्म को देख लेते हैं, 3 वाले टर्म्स कहां पे, ये 3 वाला एक ही टर्म है, तो क्या होगा -2I3। अब क्या होगा, पावर सप्लाई का वैल्यू -10 है, बिल्कुल दैट साइड, और आपको ये मिल गया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दूसरा लूप लेते हैं, कौन सा सेकंड लूप, ACBA ले लेते हैं। तो ACBA के हिसाब से अगर आप चलोगे तो क्या हो गया, इन लूप ACBA। अब इसमें भी हमें वही ना जो रूल लेना है, आप इसमें भी लूप इमेजिन कर लो, तो ये ट्रायंगुलर शेप है तो यहाँ पे भी हमने ट्रायंगुलर शेप में ही लूप इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल पे खड़े होकर, मतलब पॉजिटिव स्टैंड वेरी क्लोज टू पावर सप्लाई एंड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट्स गोइंग राइट, तो अकॉर्डिंगली यू विल मेक द लूप। अब हमको ऐसे जाना है लूप के हिसाब से, तो लूप के हिसाब से जाना है, मतलब यहां से A टू C गए तो क्या हुआ, पावर सप्लाई का वैल्यू का -10 वोल्ट, ठीक है। अब फिर हाई टू लो गया ना -10, ये क्या लो टू हाई हो गया, तो लो टू हाई मतलब क्या होगा 1 ओम, कितना करंट है I1, तो ये -I1 हो गया, सॉरी प्लस हो गया ना, लो टू हाई मतलब प्लस हो गया, वो I1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। इस ब्रांच में देखते हैं कहां से जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हो, तो लो टू हाई प्लस होगा, क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस है, बट करंट की वैल्यू का I2 प्लस I3 है। देन विल गो लिटिल अहेड, ये पार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम लो टू हाई जा रहे हैं, लो टू हाई मतलब अगेन प्लस होगा, बट कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, एंड व्हाट इज द करंट I2, तो ये होगा 4I2 का वैल्यू हो जाएगा 0, कोई इशू नहीं। अब क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो ये
माइनस 10 हो गया, प्लस क्या होगा ये I1 हो गया प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। तो I1 की कितनी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। देन I2 की कितनी वैल्यू है, 2I2 प्लस 4I2 क्या होगा, ये 6I2 हो गया, ठीक है, प्लस 2I3 हो गया इज इक्वल टू 10 को यू टेक दैट साइड। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 3 वेरिएबल्स है तो हमें कैसे मिलेगा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, वो मेथड तो हमने लर्न नहीं किया हुआ है। तो अब एक चीज जरा नोटिस करो इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो देखो I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू ना वहां पे 6I2 यहाँ पे भी 6I2 है, I3 की वैल्यू वहां पे 2I3 यहाँ पे भी 2I3 है ना, ये 6I2 2I3 6I2 2I3। और दूसरा क्या है कि साइन उनका अलग है, तो अगर हम उनको साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे तो दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, हमको I1 की वैल्यू मिलेगी सर। तो अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 को ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है 7I1 है प्लस माइनस क्या 6I2 है माइनस 2I3 है, ठीक है, इक्वल टू क्या है 10 है, बराबर। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये I1 है प्लस 6I2 है, फिर क्या है प्लस 2I3 है इक्वल टू 10। तो दिस वैल्यू विल कैंसिल, दिस वैल्यू विल कैंसिल, ये कितना होगा 8I1 इज इक्वल टू 20। सो एक्चुअल में I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू होगी। कैन यू फाइंड आउट वैल्यू फॉर I2? तो प्रॉब्लम है अगर आप I1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको I2 के लिए क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलो ठीक है, एक वैल्यू में पुट करके देख लेता हूं। तो चलो ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया हमने। सो पुट I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आपने पुट कर दिया तो I1 की वैल्यू को 2.5 ले लिया हमने, सॉरी I1 की वैल्यू वी आर गोइंग टू टेक 2.5। सो 2.5 का 2.5 विल गो दैट साइड, है ना, यहाँ पे ये वैल्यू I1 में हमने क्या ले लिया 2.5, ठीक है, प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, 2.5 विल गो दैट साइड। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7.5। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि इनको तो ईच ब्रांच से चाहिए ना करंट, तो हमको तो सिर्फ I1 की वैल्यू मिली एंड वी आर नॉट हैविंग डिटेल अबाउट I2 एंड I3। तो क्या होता है ना कि ये एक इक्वेशन हमको मिलता है यहां पुट करने के बाद I2 एंड I3 से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं ना, कभी देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी जिससे हमें एक और इक्वेशन मिले I2 एंड I3 का। तो अब देखो हमने ये 1 एंड 2 ये लूप हमने सॉल्व कर लिया, एक लूप ये दिख रहा है, तो यहां पर भी ट्राई करके देख लेते हैं। सो व्हेन वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट इन दिस लूप, तो आप पावर सप्लाई के पास खड़े हो जाओ, देन यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे हो गया, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो अब उस लूप को ले लेते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लूप, सो इन लूप, सो लूप क्या होगा, बी हो गया, ठीक है, बी ये पॉइंट का नाम है, पावर सप्लाई पे ई हो गया, और वो क्या हो गया डी हो गया, अगेन यू आर गोइंग टू बी, ठीक है, ये लूप बन गया आपका। तो आप क्या करते हो, लूप के हिसाब से चलते हैं हम लोग ऐसे, तो लूप के हिसाब से जा रहे हो तो ऐसे जा रहे हो आप ना, हाई टू लो, हाई टू लो मतलब पहले से माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब क्या 5 वोल्ट। फिर क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हो, इस ब्रांच में जा रहे हो, ये कहां जा रहे हो, लो टू हाई जा रहे हो, लो टू हाई मतलब प्लस हो गया, ये 2 हो गया, पर करंट की वैल्यू क्या है I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये भी है लो टू हाई, बट क्या करंट है इस ब्रांच में I2 प्लस I3 है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 2 ओम है, तो प्लस यू गॉट 2 I2 प्लस I3 एंड टोटल वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। सो ये माइनस 5 हो गया, ये प्लस 2 I2 हो जाएगा, प्लस 2 I3 हो जाएगा, माइनस 2 I1 है, अच्छा माइनस 2 I1 है। तो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे I1 की वैल्यू ना पुट भी कर देता हूं, अभी पुट कर देता हूं। तो 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू 2.5 अभी पुट कर देते हैं, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 2 I2 हो गया, प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो है ना I1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया अभी डायरेक्टली, सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 2 I2 एंड 2 I2 विल ऐड एंड 2 I3 2 I3 विल ऐड, तो क्या हो जाएगा ये 4 I2 प्लस क्या हो गया 4 I3 हो गया, इक्वल टू ये 2 इंटू 2.5 होगा माइनस 5, और माइनस 5 क्या होगा 10 हो गया, माइनस 10 विल गो दिस साइड, तो ये क्या होगा इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे भी I2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे भी I2 I3 है, तो अभी ट्राई करते हैं सॉल्व करके। तो इसमें क्या है, इक्वेशन 4 को वैसे रहने देते हैं, बराबर। यहाँ पे देखो ये I3 को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके नीचे लिख देता हूं मैं
तो ये कितना हो जाएगा 12i2 हो जाएगा बराबर, प्लस ये क्या होगा, कितने से 2 से मल्टीप्लाई करें ना, हाँ, तो ये 4i3 हो जाएगा इक्वल टू 7.5 हो गया ना बेसिकली, ठीक है। जस्ट ये माइनस 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 ये कैंसिलेशन हो गया, तो ये माइनस माइनस है ना, तो 12 ये क्या होगा 8 हो गया ना, -8i2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/8 एम्पियर। चलो ठीक है, i2 का वैल्यू मिल गया। कैन वी गेट वैल्यू फॉर i3? सो i3 के लिए किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दो ना, क्वेश्चन 4 मुझे सिंपल लग रहा है, ठीक है, तो इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं हम। सो पुट i2 इन 4, कंडीशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन में वी आर पुटिंग इन 4, तो ये 4 हो गया, i2 का वैल्यू इज व्हाट 5/8, ठीक है, प्लस 4i3, ओके, इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू 10, तो ये 4 2s are, then you will take 4i3 is equal to this 10 minus 5/2 in the sense that 5/2 is what? This you cancel and 2.5. So it's 10 minus 2.5. So what do we get finally? So you are getting as this 4i2 is nothing but 7.5. Correct? 7.5. So what's the value for i2? i2 is 7.5 upon 4. So अगर मैं इसको प्रॉपर नंबर में लेना है तो क्या होगा, i2 मल्टीप्लाई विद 2 इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का होगा 15/8 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू है, i3 की वैल्यू है, सॉरी दीज आर द वैल्यूज ऑफ i3, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसको अभी हर ब्रांच के लिए देख लेते हैं। सो आई होप कि वो चीज आपको दिख रही होगी। सो अब हम हर ब्रांच के लिए देख लेते हैं। तो कौन सा ब्रांच होगा, ब्रांच AC। सो करंट थ्रू ब्रांच AC क्या है, AC इज I1, है ना, यहां से करंट I1 जा रहा है ना, इस ब्रांच से, तो I1 का वैल्यू है डिटरमाइन दैट इज 2.5 एम्पियर, ठीक है। दूसरा करंट थ्रू AB ब्रांच, करंट थ्रू AB ब्रांच, AB ब्रांच से कितना करंट है, I2 है, I2 का वैल्यू कितना 5/8 एम्पियर, ठीक है। देन नेक्स्ट I3 वाला देख लेते हैं, करंट थ्रू BED ब्रांच। सो करंट थ्रू BED ब्रांच का है, I3 का वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन किया व्हिच इज व्हाट 15/8। अब कौन सा करंट बच गया है, तो वी हैव डन फॉर दिस ब्रांच, वी हैव डन फॉर दिस ब्रांच एंड वी हैव डन फॉर दिस ब्रांच, सो 3 ब्रांचेस लेफ्ट। अभी करंट फॉर AD ब्रांच है ना, AD ब्रांच, दिस ब्रांच, तो ये क्या है, I1 माइनस I2 है, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 2.5 है, ठीक है, और फिर I2 की वैल्यू क्या 5/8 है, तो 5/8 एलसीएम ले लो, ये 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 15/8 एम्पियर, ठीक है। IAD के बाद नाउ कौन सा ब्रांच, सो विल सी दिस BC ब्रांच। सो करंट थ्रू BC ब्रांच, तो यहां पे मैंने लिख दिया IAC, IAB, ID, I1, I2, I3, ठीक है। तो IBC किसमें है, वो है I2 प्लस I3 है, I2 प्लस I3, तो I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू है 5/8 एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर I3? I3 का वैल्यू 15/8, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 20/8, दैट इज आफ्टर कैंसिलेशन हो गया 2.5 एम्पियर। तो हमको अभी ये ब्रांच भी मिल गया, अभी लास्ट ब्रांच बचा है। लास्ट ब्रांच कौन सा है, लास्ट ब्रांच होगा C2D। सो करंट थ्रू C2D ब्रांच, तो क्या होगा वो I2 प्लस I3 माइनस I1। तो देखो I2 प्लस I3 का भी हमने कैलकुलेट किया ना, कितना है 2.5 है, और I1 का करंट भी क्या है 2.5 है, तो वो ब्रांच से कितना करंट होगा 0 एम्पियर करंट या 0 करंट विल मींस नो करंट थ्रू दैट ब्रांच। समझ में आ रहा है, मतलब जो भी करंट होगा ना, यहां से करंट रिलीज होगा, ये ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये ब्रांच होते हुए ये ऐसे आ जाएगा, but there is no current in this branch. So these questions are very simple, just you need to do practice, more you will practice more you will understand, क्योंकि इनमें ना लॉजिकल सीक्वेंस है, just by doing a small mistake, like अगर आपने हाई टू लो पोटेंशियल में कोई भी मिस्टेक किया then your answer will be wrong, so you have to be very careful in such cases. Thank you very much.